Recording in progress. Very good afternoon, everybody. I hope the problem has sorted out to joining. Morning सुबह साइंस क्लासेस का थोड़ा इश्यूज था. I can understand. I got a lot more calls. तो हियर आफ्टर आपको वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा. तो लिंक जो भेजा है वो दैट विल बी द सेम लिंक ओके फॉर एवरी क्लासेस, ऑल द स्पोर्ट्स साइंस क्लासेस. सो आपको वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा. आई एम ऑडिबल टू एवरीबडी? सुनाई दे रहे क्या? ओके ओके, थैंक यू. ओके, just wait for few more minutes to join everyone. After that we can start. Let others to join.
So it's almost 5 minutes over, still 1:30 participants. Strength is 234. So I don't know rest of them क्या हो गया तो attendance issues आएगा. I told you all of you. So pass the message to your friends also and ask them to attend the classes on time. I know that some issues was there in the sports science classes, so hereafter वो नहीं होगा. Timing, most of the people have asked the timing of sports science classes. मैंने schedule already group में भेजा था. I have already shared in the group the as well as main sports also. And हम लोग स्विमिंग ग्रुप 3 में आएगा वो भी बताया मैंने. सो ग्रुप 3 का लिंक भेजा है. फिर भी अभी बोल रहे हैं नो साउंड. आई एम ऑडिबल टू एवरीबॉडी? तो कुछ लोग जो बोल रहे हैं नो साउंड, आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशू. आपका नेटवर्क इशू की वजह से होगा, बाकी सबको सुनाई दे रहे. Okay, so please make sure that your network connectivity. Okay, so I was telling about this, the Zoom link which I have again shared in the group, that will be same for the sports science classes. Group 3 का link भेजा हुआ है. मैं दोबारा इसी में भेज रही हूँ, आप just note it down. Dubara, I will send it in the group if you want. Okay, so just see that, and that group 3 link will be same for every sports science classes. And there is no point of asking timing of the class. अगर कोई online session miss किया है तो आपको मालूम नहीं होगा. So timing of the classes will be like 10:30 to 11:30 sports science class, and 12 to 1 main sports class. Again 3:30 to 4:30 sports science discussion session, then 4:30 to 6:30 main sports discussion session. Okay, this is the timetable of online classes. So according to that आप लोग attend करना जरूरी है. So बार बार timing पूछने का जरूरत नहीं. And sports science में technical error है तो yeah, definitely you can intimate us. We will try to sort it out. But please remember that the sports science classes is happening from Patiala. Okay, so when people, then they will try to sort it out. Okay, so that is how it works. So I hope hereafter आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में इश्यू नहीं होगा शायद. ओके, so whatever queries, as I told you yesterday session for the introduction session, तो जो भी doubts or queries you can type it in the chat box instead of asking or 1 minute, sorry. Okay, so that is how it works. So आपने मैसेज टाइप कर लीजिए चैट बॉक्स में जो भी क्वेरीज है. ओके, so today we are going to discuss about the syllabus of your course, certificate course का syllabus के बारे में हम डिस्कस करेंगे. So I'm going to share the screen now. I hope this is visible, all of you. Please give a thumb if it is visible. If the screen is visible or not, just give a thumb, please, so that I can understand whether the screen is visible. Okay. Okay, fine. Got it. Got it, the reply. So, these are the syllabus which we are going to discuss in this course, throughout the course. So, first topic is rules and their interpretation. That is, we are talking about in this topic, we are talking about the swimming rules, FINA rules. Now it is World Aquatics. Okay, so वर्ल्ड एक्वाटिक्स रूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ऑफिशियल्स का ड्यूटीज है और
फोर कॉम्पिटिटिव स्ट्रोक्स के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या है, और द रेस और मेडले स्विमिंग, सीडिंग, एवरीथिंग. सो वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्विमिंग कंपटीशन. ओके, स्विमिंग कंपटीशन मींस मैनेजमेंट ऑफ कंपटीशन होगा, फैसिलिटीज होगा, मेजरमेंट ऑफ पूल और लेन मार्किंग्स. ओके, सो दैट इज द बेसिक थिंग्स विच यू शुड नो. हम लोगों ने जो बेसिक आइडियाज मतलब मालूम होना चाहिए, बेसिक मेजरमेंट्स और बेसिक थिंग्स जो मालूम होना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. वो में और क्या क्या मतलब किया है तो डिस्क्वालीफाई होगा. ओके, सो कैसे ठीक से करना है, और सारा ऑफिशियल्स का ड्यूटी, हर ऑफिशियल्स का अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है. रेफरीज, चीफ टाइम कीपर्स एंड इंटर्न्स और गवर्निंग बॉडी. सो वो सारा ऑफिशियल्स का अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है. तो वो क्या है, वो हम जस्ट 1 minute. So we will talk about all the follow during the competition. Okay, दैट मीन्स जो भी कंपटीशन के टाइम जो कुछ जनरल रूल्स है उसके बारे में हम बात करेंगे द रेस में. ओके, सो ओवरऑल हम लोग फिना वर्ल्ड एक्वेटिक्स रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. दैट इज व्हाट फर्स्ट टॉपिक का एम. नाउ द बी, स्विमिंग टर्मिनोलॉजी, दैट इज रेसिस्टेंस, प्रोपल्शन, पुल, पुश, एक्सेट्रा. स्विमिंग टर्मिनोलॉजी मीन्स जो भी हम टेक्निक के बारे में बात करेंगे, स्ट्रोक टेक्निक के बारे में बात करेंगे, तो हर पॉइंट में हम लोग एक टर्मिनोलॉजी यूज करता है. दैट मीन्स इट इज साइंटिफिक लैंग्वेज, साइंस टर्म्स. ओके, that is propulsion, resistance, entry, okay, Newton's law, how it is applicable in our swimming. तो हर चीज का हर जगह पे हम लोग एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं. सो ओवरऑल वी विल टॉक हियर अबाउट ऑल द टर्मिनोलॉजी. जहां जहां हम लोग वो टर्मिनोलॉजी यूज करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. दैट इज व्हाट ऑल अबाउट फर्स्ट टॉपिक का सब टॉपिक. ओके, तो फर्स्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस का टू सब टॉपिक्स हैं. एक फिना रूल्स, दैट मीन्स वर्ल्ड एक्वेटिक्स रूल्स, स्विमिंग रूल्स, और दूसरा स्विमिंग टर्मिनोलॉजी. दैट इज व्हाट ऑल अबाउट फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर. ओके, now comes to the second topic, that is swimming facilities and their management. That means in that हम लोग चार सब टॉपिक्स हैं. उसमें मेंटेनेंस ऑफ स्विमिंग पूल, केमिकल रिक्वायर्ड फॉर पूल मेंटेनेंस, swimming pool water test, safety and sanitary of swimming pool. Okay, so in this we are going to discuss about being a swimming instructor or being a swimming coach. We should know that how the swimming pool maintenance should be follow. Okay, so we should know that हम लोग को ये मालूम होना चाहिए, being a swimming instructor or being a swimming coach, होली नॉलेज होना चाहिए कि पूल मेंटेनेंस कैसे करना है. ओके, एंड एटलीस्ट हम लोगों को केमिकल्स, कौन कौन सी केमिकल्स यूज करना है टू क्लियर द वाटर, एंड हाउ द वाटर टेस्ट शुड बी डन. ओके, और उसका सेफ्टी एंड सैनिटरी मेजरमेंट्स क्या क्या है पूल पूल साइड पे. ओके, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोगों को मतलब ये एक्सपीरियंस होगा कि जो समर कैंप लिया है, जो कोचिंग लिया है, ओके, उनको तो आइडिया होगा कि मतलब सेफ्टी एंड सैनिटरी मेजरमेंट्स क्या क्या देखना पड़ेगा. ओके, ड्यूरिंग द क्राउड टाइम. तो अगर जो स्ट्रेंथ ज्यादा है पूल अरीना में, बहुत रिस्क है, रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होगा, तो उसके हिसाब से हम लोग सीखना पड़ेगा. ओके, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस. अलोंग विद दैट केमिकल्स, बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स यूज करते हैं फॉर द वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल वाटर ट्रीटमेंट. उसके लिए हम लोग यूज करना है, कितना तक यूज करना है, कितना मेजरमेंट, कितना अमाउंट.
यूज करना पड़ेगा. ओके, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हियर, ऑल अबाउट द स्विमिंग फैसिलिटीज एंड देयर मैनेजमेंट. यहाँ पे ये कोर्स पास आउट होने के बाद आपको मतलब कहीं इंस्टीट्यूशन में या कहीं स्कूल में जॉब मिलेगा, ताकि वहां पे अगर मेंटेनेंस के लिए कोई नहीं है तो सारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिला है, तो देन यू शुड नो अबाउट एटलीस्ट द बेसिक नॉलेज ऑफ द maintenance of the swimming pool. Okay, so if you joined after passing out from this course, and if you joined any school or any institution, and just imagine that you are the one who has to look into the overall, the in charge of that institution or in charge of the pool arena, then you are the one who have to follow, or who should lead about all those things. If the maintenance staffs or maintenance के लिए अलग people नहीं है, तो then you should know about the idea, basic idea about all those things like maintenance of swimming pool and chemicals, what are the chemicals to be used and when to use and how much to be used. Okay, and how to do the pool water testing, everything. So there are lot of tests are there, like pH level check करने के लिए, chlorine level check करने के लिए. Okay, there are few tests, and we will discuss about all those things here. Okay, topic number 2, swimming facilities and the management. Okay, तो meanwhile जो क्लास के बारे में कुछ भी डाउट है, प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स. आवाज नहीं आ रहा है बोल रहे, अगेन आई एम नॉट ऑडिबल. प्लीज feel free to say whether I am audible or not. Just still my voice is not clear. Am I audible to everybody? Just give thumb. Okay, so I think few of you have okay. So I think few of you might have the internet issue. So please make sure that your connectivity is stable. अगर यहाँ पे भी मतलब इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो नहीं आएगा. सो मीनवाइल आपको क्लियर नहीं है, अगर मेरा आवाज ब्रेक हो रहे सबको, देन प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स, so that I will explain it again, whatever the जहाँ पे आपने मिस किया है. Okay, so no problem at all, I will explain it to you how much ever you want, but only like when the technical error is there. Otherwise please all of you maintain करिए कि मतलब network stable होना जरूरी है आपका. Okay, so this is what topic number 2, and the 3 is requisites of a swimming coach, qualities, duties and code of conduct of a swimming coach. अगर आप ये पास आउट अभी सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आया है, सो इट इज अभी तो आप ये कोर्स पास आउट होने के बाद you will be act as a swimming instructor or swimming coach, okay, in various centers or school. So being a coach, what are the qualification, okay, qualities, not qualification, qualities or your duties or code of conduct to being a coach. Okay, तो एक आइडियल कोच बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए और कोच का कोड ऑफ कंडक्ट क्या क्या है, और बीइंग अ कोच और क्या क्या चीज मेंटेन करना है, डेकोरम, और वो सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. दैट इज व्हाट द रिक्विजिट्स ऑफ अ स्विमिंग कोच. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दोस पॉइंट्स हियर. Now comes to the another important and fundamental topic, that is technical analysis of all 4 competitive swimming strokes. Now here we are talking about all the technical analysis of 4 strokes. As you all know that we have 4 swimming strokes, that is freestyle, backstroke, breaststroke and butterfly. So we are talking about all those 4 strokes and the technical analysis of those 4 strokes. Okay, हम लोग सारा strokes के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ये चारों स्ट्रोक. ओके, और उसका स्टार्ट, टर्न, फिनिश, एवरीथिंग. सो with this you will come to know that how the actual or how all the strokes to be performed or to do it, okay, in a proper way. That is how we are going to, that is what we are going to discuss in this topic. Okay, all the 4 strokes. इसमें बहुत सारे फेसेस भी आ जाता है, propulsion phases, catch phase and recovery
recovery phases, okay, all those things we will discuss. So before that हम लोगों को जो rules cover हो गया, तो you will have an idea about what is the disqualification of each stroke, क्या क्या disqualification होगा हर stroke में, कैसे किया है तो disqualify है, वो सबके बारे में, okay. So then it will be easy to understand the analysis techniques में क्या techniques Recording stopped. Recording in progress. Sorry to got disconnected automatically. I hope now it is audible to everybody. Am I audible? Okay. Okay, got it. Got it reply. Yeah, yes, I got your reply. Thank you. Yeah, so we are talking about the syllabus and continuing with that. Is it visible, all of you? The screen? Is the screen is visible? Please reply. Okay, I got the reply.
Yes. So for 4 strokes, okay. So we will discuss here all the four competitive swimming strokes, okay. Now we'll move to the topic number 5, that is fault and corrections of all 4 strokes. In this, so before this topic, fourth topic, we have discussing about all the 4 technical analysis techniques. So once you know the techniques of all the 4 strokes, then you should know that the common fault and how to correct that fault. So अगर हम लोग यहाँ पे चारों स्ट्रोक के टेक्निक के बारे में डिस्कस किया था टॉपिक नंबर 4 में, तो आपको वो जो टेक्निक पता चल गया, देन आपको ये भी मालूम होना चाहिए अगर जिसका क्या क्या कॉमन फॉल्ट हो सकता है, और वो कॉमन फॉल्ट्स को हम कैसे करेक्ट करना है, ओके. देन ओनली यू विल बी एबल टू teach the exact proper techniques, or you will be able to correct the proper techniques, okay, if any major mistakes which will affect in the propulsion phases, okay. जो भी strokes में मेजर मिस्टेक्स है और इश्यूज है, देन यू हैव टू सॉर्ट इट आउट द इश्यूज बाय गिविंग सम ड्रिल्स. सो वो आपको मालूम होना चाहिए उसका कॉमन फॉल्ट मतलब क्या है, और उसका 3 टाइप अलग अलग टाइप है फॉल्ट, जैसे कि बिगिनर्स फॉल्ट, ऑटोमेटाइज्ड फॉल्ट, ओके. सो दैट यू विल गेट टू नो इन डिटेल व्हेन द क्लास इज टेकिंग. सो दैट टाइम आपको ये फॉल्ट के बारे में मालूम होना चाहिए, और उसका कॉमन फॉल्ट हर स्ट्रोक्स में एक कॉमन फॉल्ट हो जाता है, जैसे कि स्ट्रेट आर्म रिकवरी इन फ्री स्टाइल, ओके, एंड बैक स्ट्रोक में वाइड एंट्री, और ब्रेस्ट स्ट्रोक में वाइड किक, ओके, एंड बटरफ्लाई में अगेन इट इज द लेग्स इज नॉट मूविंग टुगेदर. सो ऑल दोस काइंड ऑफ mistakes are very common in few of the like intermediate or school level swimmers. सो फॉर देम आपने कैसे ठीक करना है वो करेक्शंस, बहुत सारे कॉमन करेक्शंस आपको मिलेगा हर एक स्ट्रोक में. स्टैम रिकवरी होता है फ्रीस्टाइल में, और बटरफ्लाई स्ट्रोक में दोनों लेग्स एक साथ नहीं आएगा, और ब्रेस्ट स्ट्रोक में दोनों लेग का नी मतलब वाइड, बहुत ज्यादा वाइड हो जाएगा, और बैक स्ट्रोक में मतलब ओवर एंट्री या वाइड एंट्री होने का चांसेस है. सो ऑल दोज थिंग्स आर कॉमन मिस्टेक्स फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रोक. सो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो कॉमन मिस्टेक कैसे ठीक करना है, ओके. कौन सी ड्रिल देना है वो करेक्ट करने के लिए, ओके. एंड यू शुड नो द अलोंग विद दैट आपको प्रॉपर टेक्निक्स भी मालूम होना चाहिए. इसलिए इससे पहले हम वो टेक्निक के बारे में बात करेंगे. तो आपको एक बार वो टेक्निक का आइडिया हो गया, देन यू विल कम टू नो दैट व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स एंड हाउ टू करेक्ट दैट, ओके. So the fifth topic we are talking about all those four strokes ka fault and then corrections. Okay. So next move to the topic number 6, that is specific physical conditioning or fitness. बहुत ज्यादा important है फिटनेस, टू मेंटेन द फिटनेस. फिजिकल फिटनेस मेंटेन करना बहुत जरूरी है अपने आप के लिए, और यू नो for our own self, and plus to give the fitness exercises to the kids or students or swimmers, that will be helpful for their overall performance. So physical conditioning or physical fitness is both important, and in that physical conditioning we will discuss about the development of endurance, strength, speed, flexibility, and coordinations, and the method of developing all those motor abilities. These are the motor abilities, and आपको हम लोगों को being a swimmer or being a swimming coach, हमारा event सबसे ज्यादा endurance dominated है, and plus strength also, and as well as along with that flexibility, speed सब important है. सो इसीलिए डेवलपमेंट ऑफ मोटर एबिलिटीज टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्विमर और फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द एथलीट्स. सो वी विल टॉक अबाउट, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एंडोरेंस का मतलब क्या है, और एंडोरेंस कैसे डेवलप करना है, और एंडोरेंस डेवलप करने के लिए क्या क्या मेथड्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, देयर आर लॉट मोर टाइप्स ऑफ मेथड्स टू डेवलप द एंडोरेंस, लाइक continuous method, fartlek method, or repetition method, interval method, okay, all those things. And even strength also, like explosive strength, maximum strength, okay. So strength, endurance, all those things
अलग अलग मेथड्स हैं, और स्पीड का फैक्टर भी, फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीइंग अ स्विमर। तो ये सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द प्लेयर्स, नॉट ओनली स्विमिंग। सो हम लोग पर्टिकुलरली स्विमिंग के बारे में बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट हाउ टू डेवलप द एंड्योरेंस इन स्विमिंग, okay, how to develop strength for the swimmers, or how to develop speed for swimmers, and how it is related to their performance, okay। तो मतलब एंडोरेंस कैसे डेवलप करना है स्विमिंग में, और स्विमर्स का स्ट्रेंथ कैसे डेवलप करना है, और स्पीड फैक्टर क्या क्या है, और स्पीड कैसे डेवलप करना है स्विमिंग में, और वो जो स्विमिंग परफॉर्मेंस में कैसे अफेक्ट होता है, okay। All those things we will discuss about in this topic, okay। Now the last topic is topic number 7, that is sports planning, which is also very important। हर एक चीज के लिए planning बहुत ज्यादा जरूरी है, okay। Like how we are planning according to our course schedule, timetable है अलग अलग, okay। साइंस क्लासेस का, ऑनलाइन क्लासेस का, ऑफलाइन क्लासेस का टाइमिंग अलग अलग है। हर चीज के लिए हम लोग प्लान करके रखा हुआ है, उसी प्लान के थ्रू वी आर मूविंग, okay। So same way planning is very important for everybody, and if you talk about the performance, and आप जो कौन सी प्लेयर्स को स्विमिंग और कौन सी प्लेयर्स को वर्कआउट दे रहे हैं, उसके हिसाब से आपने प्लान करना बहुत जरूरी है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लानिंग ऑफ शॉर्ट टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान एंड लेसन प्लान। सो हम लोग इस तीनों के बारे में बात करेंगे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड लेसन प्लान। यहाँ आपने ऑफलाइन आने के बाद हम लोगों को लेसन प्लान का प्रैक्टिकल होगा, और उसमें हम लोग लेसन प्लान के बारे में दैट मीन्स एक पर्टिकुलर लेसन प्लान का मतलब क्या है, यू आर प्लानिंग फॉर अ सेशन, ओनली फॉर वन सेशन, यू आर प्लानिंग फॉर अ वन सेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग टॉपिक दे देंगे आप लोगों को, तो उस टॉपिक के ऊपर आपने एक लेसन प्लान बनाना पड़ेगा। वी विल टीच यू हाउ टू डू द लेसन प्लानिंग एंड हाउ टू प्रिपेयर द लेसन प्लान, एवरीथिंग। एंड उसके बारे में हम लोग डिस्कस, प्रिपेयर करना पड़ेगा प्रैक्टिकली। तो लेसन प्लान क्या है, तो वन पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम लोग, आप लोग कैसे प्लान कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचिंग फ्री स्टाइल आर्म एक्शन टू द बिगिनर्स, ओके। मान लो आपको एक टॉपिक दिया है कि टीचिंग फ्री स्टाइल आर्म एक्शन टू द बिगिनर्स, दैट मीन्स एक बच्चों को एक बिगिनर को फ्री स्टाइल आर्म एक्शन के बारे में बताना है, मतलब सिखाना है फ्री स्टाइल आर्म एक्शन। तो आप कैसे सिखाओगे, स्टेप बाय स्टेप। सो दैट मीन्स यू आर प्लानिंग ओनली अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर टॉपिक। टॉपिक क्या था, फ्री स्टाइल आर्म एक्शन, okay। What are the topic you what topic you have got, freestyle arm action, teach freestyle arm action to the beginners। So on that topic, on the basis of that topic, you are preparing a lesson plan। That is what all about lesson plan। तो आपने स्टेज बाय स्टेज, फेज बाय फेज, वन बाय वन, सीक्वेंस वाइज आपने सिखाएगा कि खड़े होके स्टैटिक पोजीशन में, फिर डायनामिक पोजीशन में वॉकिंग करके, या तो पानी के अंदर घुसने के पहले ऑन लैंड में एक्सरसाइजेस कराएगा, ओके। Then in water by standing, with walking, then with the support of the partner, and with support of the like equipments, okay, you can use any equipment। So all those things you are explaining, that is what the actual planning, actual lesson plan is all about, okay। So that way, even short term, long term also क्या होता है, आपका long term plan, for example 4 years का प्लान, 4 years के बाद वो कौन कौन सा है, उसके हिसाब से आप for same way short term। So all those things we will discuss about in this topic, that is what sports planning, which is also very important, okay। So this is what all about the theoretical topic, theory topics, okay। And then we'll move to the practicals. We are discussing about all these things practically, that means like development of personal performance techniques and skill training। जैसे हम बताया था पहले टेक्निक्स के बारे में और स्किल के बारे में, और कैसे मोटर एबिलिटीज डेवलपमेंट कैसे करना है, ये सब कुछ हमने थियोरेटिकली बताया। लेकिन आप प्रैक्टिकली खुद आपका टेक्निक्स ठीक करना है, देन ओनली यू कैन टीच टू समवन एल्स, राइट। यू कैन टीच टू स्टूडेंट्स लाइक प्रॉपर टेक्निक क्या क्या है और कैसे करना है। तो उससे पहले आपको खुद मालूम होना चाहिए कि